Excuses make today easy, but tomorrow harder. Excuses make today easy, but tomorrow harder. But discipline makes today hard, but tomorrow easier. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the jurisprudence, and in this series I have discussed various important concepts relating to the jurisprudence. In the previous video I have discussed with the natural law school. Today I am going to discuss about the sociological school. Sociological school of jurisprudence is more concerned with the working of law rather than in abstract sense, abstract content. And this school emphasized that the law must be studied in action, not in the textbooks. And this approach takes law as an instrument of social progress. The exponents of this school considers the law as a social phenomena, and the sociological approach was developed during the 19th and 20th century. Till the 19th century, law was command of sovereign. This school sets society as the main source of law, and this school emphasizes on the working of law. That law must be studied in action and not in textbooks, in an abstract content. And this approach considers the law as an instrument of social progress, concerned with the study of law in relation to the society and values. As per this school, law and society are related to each other. They are mainly concerned with the relationship of law to other contemporary social institutions. As per this school, it insists that legal order is a phase of social control and can't be understood unless taken as a whole, setting among the social phenomena, as it has major impact on the society. And this school was developed by the jurist Auguste Comte, Hearing, Duguid, Enrich, Pound, Montesquieu, Spencer, etc. And these exponents of this school considers the law as a social institution and examines the law in relation to the society. And the main concern of the sociological jurist is to study the effect of law and the society on each other. They treat law as an instrument of social progress. Likewise, it was also opposed to the historical school. If you talk about the meaning of social jurisprudence, the main subject matter of the sociology is society, human behavior, human changes, and jurisprudence is the study of law. And this school advocates that law is a social phenomena and law and society are related to each other. In case there is any change in the society, it will directly or indirectly affect the law and legal system. यदि हम सोशोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं तो जो सोशोलॉजिकल स्कूल है इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो 19 और 20 सेंचुरी के आसपास हुई थी और 19 सेंचुरी तक यदि आप देखें तो लॉ को कमांड ऑफ सोवरन के साथ समझा जाता था कि लॉ जो है वो कमांड ऑफ सोवरन है, संप्रभु की के द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है वही लॉ है. बट आफ्टर द 19th सेंचुरी द मेन सोर्स ऑफ लॉ वॉज कंसिडर्ड एज सोसाइटी. यदि हम देखें तो 19th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पे लॉ को सोसाइटी के साथ कंसिडर किया जाने लगा और ये जो स्कूल है ये लॉ को सोसाइटी के साथ में कंसिडर करता है और ये कहता है कि जो लॉ है उसको एक्शन में पढ़ा जाना चाहिए, ना कि टेक्स्ट बुक के अंदर. दिस अप्रोच कंसिडर्स द लॉ एज ए सोशल प्रोग्रेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस. ये लोग इस लॉ के हिसाब से, इस अप्रोच के आधार पर जो लॉ है दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस, सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है उसका इंस्ट्रूमेंट है, मेन इसका इंस्ट्रूमेंट माना जाता है. जो जहाँ पर लॉ और सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. और वो ये जो स्कूल है ये इस बात पे इंसिस्ट करता है, इस बात पे जोर देता है कि जो लीगल ऑर्डर है दैट इज अ फेज ऑफ सोशल कंट्रोल and that can't be understand unless the taken as a whole, setting among the social phenomena. तो यदि हम इस स्कूल के वो फाउंडर्स की बात करते हैं तो दिस द स्कूल वाज डेवलप्ड बाय जूरिस्ट अगस्टे कॉम्टे, प्रोफेसर पाउंड, डूगिट, एनरिच, हियरिंग, मॉन्टेस्क्यू, स्पेंसर. These are the main exponents of this school. एंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल कंसिडर्स द लॉ एज ए सोशल. यदि स्कूल के एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो लॉ को वो सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ कंसिडर करके चलते हैं और ये कहते हैं कि जो लॉ है उसको सोसाइटी के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए. यदि हम सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इसका जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो सोसाइटी रहता है और यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर, सोशल चेंज, दीज आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल चेंज. दैट इज द मेन स्टडी रिलेटिंग टू द लॉ.
और ये जो स्कूल है, इस स्कूल के हिसाब से जो मेन जो एडवोकेट्स हैं वहाँ पे लॉ इज, वो ये कहते हैं कि जो लॉ है वो एक सोशल फिनोमिना है, जहाँ पे लॉ और सोसाइटी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एंड दिस द फ्रेंच जूरिस्ट अगस्टे कोम्टे, जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस स्कूल वाज डेवलप्ड बाय अगस्टे कोम्टे। यदि हम अगस्टे कोम्टे जी की बात करते हैं तो ही वॉज ए फ्रेंच जूरिस्ट एंड ही वॉज रिगार्डेड द फाउंडिंग फादर ऑफ द सोशोलॉजिकल स्कूल। अगस्टे कोम्टे जी को फाउंडिंग फादर माना जाता है सोशोलॉजिकल स्कूल का। एंड ही डिस्क्राइब्ड सोशोलॉजी एज पॉजिटिव साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कोम्टे, society is like an organism and it can progress when it is guided by scientific principles. Thus, he made a great effort to use the law as a tool by which human society maintains itself and progresses. If we talk about the Professor Enrich, यदि हम प्रोफेसर एनरिच जी की बात करते हैं तो he says that at the present as well as at any time, the center of gravity of the legal development lies not in legislation nor in juristic decisions but in society itself. If we talk about the professor hearing, he considers law as a mean to an end. Friedman calls the hearing as the father of modern sociological jurisprudence, and he was opposed to doctrine of individualism. And according to Professor Hearing, purpose of law is to harmonize the conflicting interests of the individuals in the society, and that is to protect the interests of the society as a whole. And his theory is called social utilitarian theory. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अगस्टे कोम्टे जी हैं, ही इज नोन एज फादर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल। फाउंडिंग फादर ऑफ द सोशोलॉजिकल स्कूल जो वो अगस्टे कोम्टे जी को माना जाता है। अगस्टे कोम्टे जी के हिसाब से जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह कार्य करती है, जहाँ पर प्रोग्रेस की जा रही सोसाइटी की। एंड इट कैन प्रोग्रेस, और ये जो सोसाइटी ये तभी प्रोग्रेस करेगी जब इसको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा गाइड किया जाएगा। और उन्होंने अपना एक एफर्ट किया था कि वहाँ पे जो लॉ है उसको एक टूल की तरह समझा जाना चाहिए। लॉ एज ए टूल, जिसके अंदर जो ह्यूमन सोसाइटी है वो अपने आप को प्रोग्रेस करती है, मेंटेन करती है, और वहाँ पे लॉ को सोसाइटी के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। और यदि हम प्रोफेसर एनडीजी की बात करते हैं तो प्रोफेसर एनडीजी के हिसाब से, चाहे वो आज प्रेजेंट की बात करें या किसी भी समय की बात करें, जो मेन जो लीगल डेवलपमेंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लेजिस्लेशन में लाई नहीं करती, ना ही ज्यूरिस्टिक डिसीजंस में लाई करती है। वहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लीगल डेवलपमेंट की वो सोसाइटी के अंदर लाई करती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एनरिच, एट प्रेजेंट और एट एनी टाइम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लीगल डेवलपमेंट लाइज नॉट इन legislation nor in juristic work nor in juristic decisions but in society itself. यदि हम प्रोफेसर हियरिंग जी की बात करते हैं तो वो लॉ को एक मीन मानते हैं टू एन एंड, मतलब एक जरिया है जिसके जरिए आप अपने पर्पस तक को अचीव कर सकते हैं। एंड फ्राइडमैन जी ने हियरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का नाम दिया है, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है जो इंडिविजुअलिज्म है उसको संदर्भ लिया नहीं जाना चाहिए, मतलब जूरिस्प्रूडेंस ही अपोज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जो प्रोफेसर हियरिंग जी है उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म का अपोज किया है। हियरिंग जी के हिसाब से जो मेन पर्पज है लॉ का, दैट इज टू हार्मोनाइज द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी and to protect the interest of the society as a whole. प्रोफेसर हियरिंग जी के हिसाब से मेन पर्पज जो लॉ का है वो पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। यही वजह है कि प्रोफेसर हियरिंग जी को सोशल यूटिलिटेरियन के नाम से भी जाना जाता है। If we talk about the main background of the sociological school, laissez-faire is the most essential reason फॉर द इन्वेंशन ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल। लेजे फेयर जो थ्योरी है वो इसका मेन आधार मानी जाती है, एंड दिस इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल। भी यही फैक्टर जो है जो ये मेन इसके रिस्पॉन्सिबल माना जाता है सोशोलॉजिकल स्कूल के एमर्जेंस का। ये जो स्कूल है दिस स्कूल कम आफ्टर द एनालिटिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल। आप भी जानते हैं कि जो हिस्टोरिकल स्कूल हो जो एनालिटिकल स्कूल हो वो पहले आए और ये सोशोलॉजिकल स्कूल बाद में आया है, और इसके जो सीड हैं वो हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर ही पाए जाते हैं।
एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द emergence ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल, यदि हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि सोशोलॉजिकल स्कूल के आने का मेन रीजन क्या, आधार क्या रहा है, दैट इज द लेजे फेयर. लेजे फेयर मीन्स ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लेजे फेयर, that refers to the policy of minimum government interference which dealing with the economy, society or the individual. Greater relevance was given to the individual growth for the betterment rather than state interest, general interest and welfare of the state. This means this school is outcome of the reaction of the laissez-faire, because the sociological school advocates the balance between the welfare of the state and individual interest. लेजे फेयर का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जो सोशल वेलफेयर है दोनों के बीच में बैलेंस बिठाया जाना चाहिए. वहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए, वहाँ पे सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की वो बढ़ती जा रही है लेजे फेयर थ्योरी की. और वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है ह्यूमन के इंटरेस्ट के अंदर वो मिनिमम होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेजे फेयर थ्योरी, जो कहीं ना कहीं इस सोशोलॉजिकल स्कूल का आधार मानी जाती है. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशोलॉजिकल स्कूल, दैट इज द मेंटल बैंकरप्सी ऑफ द एनालिटिकल अप्रोच. यदि हम देखें मेंटल जो बैंकरप्सी एनालिटिकल अप्रोच की, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोशोलॉजिकल स्कूल. सोसाइटी इज आल्सो ए ग्रेटर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द emergence ऑफ द सोशोलॉजिकल स्कूल, क्योंकि सोसाइटी जो वो मेन फैक्टर रहा है जिसकी वजह से सोशोलॉजिकल स्कूल एमरजेंसी में आया है. एंड द थर्ड फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशोलॉजिकल स्कूल, दैट इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन द लॉ एंड द सोसाइटी. आप देखेंगे जो लॉ और सोसाइटी वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द emergence ऑफ द सोशोलॉजिकल स्कूल. एंड कॉन्फ्लिक्टिंग बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द सोशल इंटरेस्ट एंड नीड टू रिकॉन्साइल दैम. यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जो सोशल इंटरेस्ट है इनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता रहता है और उन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, जिसकी वजह से सोशोलॉजिकल स्कूल emergence में आया है. एंड वर्क्स ऑफ द अर्लीस्ट पायनियर्स ऑफ द न्यू इंटरेस्ट in the society, such as Bentham, Webner, Renner, and others, etc. So these are the main reasons for the emergence of sociological school. Thus, the sociological school of jurisprudence gives prominence to the individual development rather than state interest, individual interest, and welfare of the country. Bentham theory of the utility, यदि हम बात करते हैं, इट मीन्स द बिगेस्ट गुड ऑफ द टू द बिगेस्ट नंबर. जो आपने बेंथम जी की थ्योरी पढ़ी है पेन एंड प्लेजर वाली, उसके अंदर क्या कहा जाता है कि हमें कुछ मतलब वहाँ पे बिगेस्ट गुड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो, हमें ऐसे कानून की जरूरत है. मतलब बिगेस्ट गुड टू द बिगेस्ट नंबर ऑफ द पीपल दैट मस्ट बी यूज्ड बाय द सोशोलॉजिकल जूरिस्ट फॉर द लीगल रिफॉर्म, सोशल प्रोग्रेस. तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होना चाहिए उसके द्वारा. If we talk about the main characteristics of the sociological school, main features of the sociological school, and the first is sociological school of law lays emphasis more on the functional aspect of the law, legal order, legal precepts rather than its abstract content. तो यदि हम लॉजिकल स्कूल की इसकी सोशोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सोशोलॉजिकल स्कूल है देयर आर द लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ द सोसाइटी. The concept of the sociological school are interrelated with each other, and it is a set of well-defined concepts. Sociological school considers the law as a social institution in which law direct impacts on the society, and according to sociological needs, law impacts on the society. And this, whereas analytical school is made consciously and historical school regards it as something found. मैंने हिस्टोरिकल स्कूल में क्या कहा था कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोग बनाए नहीं गए, वो पाया गया है. और यहाँ पे सोशोलॉजिकल स्कूल जो है वो एक्शन के अंदर कार्य कर रहा है. वो इसको बात नहीं कर रहा कि वहाँ पे क्या चीज़ मिली है, वो ये कहता है कि इसको एक्शन के स्टडी में उसमें पढ़ा जाना चाहिए, ना कि टेक्स्ट बुक के अंदर. जो सोशोलॉजिकल स्कूल है वो लॉ को एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह कंसिडर करता है, जहाँ पे जो लॉ है वो पूरी तरह से सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो कानून है वो चेंज हो रहे हैं. और यहाँ पे जो एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, दैट इज मेड कंसाइसली. और हिस्टोरिकल स्कूल में क्या कहा कि ये वहाँ पे जो लॉ है वो बनाए नहीं गए, वो पाया गया है. इफ यू टॉक अबाउट द सोशोलॉजिकल स्कूल दैट इज कम्प्लीटली नेग्लेक्ट पॉजिटिविज्म. जो सोशोलॉजिकल स्कूल है वो पॉजिटिविज्म को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करता है.
मीन्स कमांड ऑफ द सोवरन इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस बाय द सोशोलॉजिकल स्कूल, जो एनालिटिकल स्कूल के द्वारा जिसको इंपॉर्टेंस दी गई थी। वहाँ पे संप्रभु की जो कमांड है उसको कोई मतलब वहाँ पे उसको महत्व नहीं दिया गया है। और जबकि यदि हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमांड ऑफ सोवरन को कहीं ना कहीं स्थान दिया गया था। एंड सोशोलॉजिकल जूरिस्ट ले स्ट्रेस अपॉन द सोशल पर्पजेज। यदि हम सोशोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं तो वो सोशल पर्पजेज पे ज़्यादा ध्यान देता है रादर देन द सैंक्शन एज एनालिटिकल स्कूल। तो वहाँ पे जैसे कि आप एनालिटिकल स्कूल में देख रहे थे, वहाँ पे सैंक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। यहाँ पे इसको नहीं जोर दे रहे, यहाँ पे केवल सोशल फिनोमेना के ऊपर, सोशल पर्पजेज के ऊपर जोर दिया जा रहा है। एंड sociological jurists describes the legal perceptions such as legal institutions, legal doctrines, legal precepts functioning or defining the law in terms of court ruling and decisions with the realistic approach of the law. The sociological jurist strives to study the law in terms of immediate social needs. तो सोशोलॉजिकल स्कूल एक तरह से सोशल नीड्स के आधार पर, जो चेंजिंग नीड्स है उसके आधार पर मतलब वहाँ पे लॉ को स्टडी करता है। In view of the sociological school, lies wholly concerned with the effect of the society. जो लॉ है वो पूरी तरह से सोसाइटी के साथ संबंधित है। रादर ट्रीटिंग लॉ एज ए विल ऑफ द गॉड, वहाँ पे वो ये नहीं कहता कि जो लॉ है वो गॉड की कमांड की, सोवरन की कमांड है, या यूनिवर्सल नेचर में मतलब यूनिवर्सल रीजन पाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन फंक्शनल सेंस द की पॉइंट्स ऑफ द that reflects the basis of sociological school are the how the law works। वो लो जो वहाँ पे वो क्या कहता है सोशोलॉजिकल स्कूल, वो ऐसे पढ़ता है कि जो लॉ है वो कार्य कैसे कर रहा है सोसाइटी के अंदर। मीन्स दैट मीन्स लॉ मस्ट बी स्टडीड इन एक्शन। सेकेंड वन इज व्हाट द लॉ, व्हाट आर इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसीज। भी वहाँ पे जो लॉ है उसके क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसीज हैं उसके संदर्भ में उसे पढ़ा जाना चाहिए। Hence we can say that sociological school was a reaction and revolt against the barren formal approach of the analytical jurisprudence। तो ये एक तरह से उसके एक अगेंस्ट एक नई अप्रोच है जिसको जहाँ पे लॉ को सोसाइटी के संदर्भ में पढ़ा जा रहा है। तो इट इज वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट एंड द सोशोलॉजिकल थ्योरी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन थ्रू द वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड एंड टेक्निक एंड ए थ्योरी साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉ है वहाँ पे सोसाइटी के साथ इसके संदर्भ में इसको पढ़ा जाएगा, वो यही सोशोलॉजिकल स्कूल है। इफ वी टॉक अबाउट द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ द सोशोलॉजिकल स्कूल, द फर्स्ट मेन एक्सपोनेंट इज प्रोफेसर रोस्को पाउंड। प्रोफेसर रोस्को पाउंड जी की यदि हम बात करते हैं तो ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। प्रोफेसर रोस्को पाउंड जी ने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पाउंड, ही वाज बोर्न इन 1870 इन न्यू जर्सी। पाउंड जी का जो जन्म था वो 1870 के अंदर न्यू जर्सी के अंदर हुआ था। एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन द सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। हियर द टर्म सोशल मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग द सोसाइटी। एंड ही एक्सप्लेन्ड द इंजीनियरिंग बाय सेइंग दैट जस्ट एन इंजीनियर chalks up a plan before starting a project. Similarly, a lawyer also works with a goal in mind to uplift the society। भी जैसे एक इंजीनियर एक प्लान के ऊपर कार्य करता है, उसको डेवलप करता है, उसी तरह से जो एक लॉयर होता है ना, वो एक सोसाइटी के संबंध में, सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है उसके संबंध में, उसको कैसे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है उसके संबंध में कार्य करता है। और यहाँ पे जो लॉयर वो भी एक इंजीनियर की तरह कार्य कर रहा है। एंड पाउंड एक्सप्लेन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड दैट एम्स टू बिल्ड द efficient structure of the society which would result in the satisfaction of the minimum of the wants with minimum of friction and waste। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है वो एक तरह से लॉयर को कंपेरिजन कर रही है इंजीनियर के साथ। और यहाँ पर जो देखोगे तो जो सोशोलॉजिकल स्कूल है इस ही जो रोस्को पाउंड जी हैं, ही इज नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड दिस थ्योरी एंश्योर्स द मेकिंग, interpreting and application of law in accordance with the social facts। and this theory is also known as functional theory। यदि हम इस सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी को हम दूसरा नाम देना चाहें तो इसको फंक्शनल थ्योरी का भी नाम दे सकते हैं। and the pound defined the law as containing the rules
principles, conceptions, standards of conduct as a developed technique of the social engineering. उन्होंने इनको हथियार बताया कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से हथियार यूज किए जा रहे हैं। तो पाउंड जी ने क्या करा कि उन्होंने डिफाइन करा लॉ को किस रूप में, एज ए मतलब मैटर्स कंटेनिंग रूल्स, जहाँ पे रूल्स, प्रिंसिपल्स, परसेप्शंस, कंसेप्शंस और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, सब ये सब के सब पाए जाते हैं एज ए डेवलपमेंट टेक्निक, जहाँ पे इन इंस्ट्रूमेंट्स को एक सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक को डेवलप करने के लिए यूज किया जा रहा है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द लॉ इज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे जो लॉ का जो मेन मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेटिस्फेक्शन है, कि वो उनकी संतुष्टि कर पाए, एंड टू रिकॉन्साइल द कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो लॉ है उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मतलब उसके लिए यूज किया जाना चाहिए, उनकी संतुष्टि होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। और उस यहाँ पे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के रूप में रूल्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्शंस, इनको यूज किया जा रहा है टू डेवलप द टेक्निक ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग. If we talk about the Roscoe Pound, he was the outstanding sociological jurist in the America. And he also served as a professor of the jurisprudence in Harvard University. And he was the dean of law university, Harvard University. And the practical importance of the Pound concept of law is that he inspires legislators, judges, and jurists to interpret the law according to the needs and interests of the community. His law in action, Pound suggests that legal जो fraternity होती है, that should take of changes taking place in the society while interpreting and making the law, because the law has to be considered as an instrument of social change. भी वो क्या कहते हैं कि जो लॉ है उसको एक सोशल चेंज के इंस्ट्रूमेंट के रूप में समझा जाना चाहिए, उसको उसके संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि जैसे कि मैंने को बताया कि जो एक वकील है वो एक इंजीनियर की तरह ही कार्य करता है, उसको वहाँ पे वो लॉ को डेवलप करने की कार्य कर रहा है। जैसे कि एक इंजीनियर एक इंस्ट्रूमेंट को बनाने का कार्य करता है, उसके ऊपर कार्य करता है, उसी तरह से एक इंजीनियर वहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर कैसे कानून बनना चाहिए उसके संबंध में कार्य करता है, एक इंजीनियर की तरह सोच रखता है। तो यहाँ पे सोशल इंजीनियर की यदि बात करते हैं तो ही डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। जो प्रोफेसर पाउंड थे उन्होंने सोसाइटी के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट को डिफाइन किया था। द मेन टास्क ऑफ द लॉ इज टू make all passive effects to avoid the conflict between the law and the society. This the court, legislations, administrators and jurists must work with a plan and make all the possible efforts to balance these interests in the public, private and social interest. तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे जैसे इंजीनियर कार्य कर रहा है उसी तरह से ये कहा जा रहा है कि जितने भी इंजीनियर होते हैं, लेजिस्लेटर होते हैं, कोर्ट होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको मतलब कार्य करना होता है एक सोसाइटी के अंदर विद ए प्लान। वहाँ पे उनका एक प्लान होता है जिसको वहाँ पे वो एक पूरे एफर्ट लगा देते हैं उसको करने के लिए। और वहाँ पे किसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं? टू बैलेंस द इंटरेस्ट, पब्लिक, प्राइवेट एंड सोशल इंटरेस्ट, कि वहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट और जो सोशल इंटरेस्ट है उनके बीच में बैलेंस बना रहे। इस तरह से वो कार्य करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस एंड देयर शुड बी ए फैक्चुअल स्टडी ऑफ द सोशल इफेक्ट ऑफ द लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप कहेंगे जो सोशल इन्वेस्टिगेशंस हैं एज प्रिलिमिनरी लेजिस्लेशन, तो यहाँ पे आप देखो जो सोशोलॉजिकल स्टडी है वो लीगल, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द सोशोलॉजिकल स्कूल। तो यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट को 3 भागों में डिवाइड किया, पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। और इन तीनों के बीच में बैलेंस बिठाना ही सोशोलॉजी इनका मेन कार्य है, जूरिस्ट का मेन कार्य है, और वो एक इंजीनियर की तरह कार्य करता है। So if we talk about the word social engineering, he stated that the main aim of the engineer is to build a structure of the society. जो यहाँ पे जो मेन कार्य है एक इंजीनियर का, वहाँ पे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है एज पॉसिबल एज विच रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। और इस तरह से कार्य करना है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संतुष्टि की जा सके। Here the Pound has used the word social मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग द सोसाइटी। और जो वर्ड इन्होंने इंजीनियर वर्ड यूज करा है इसका मतलब क्या होता है? अप्लाइड साइंस कैरिड आउट बाय इंजीनियर्स टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड प्रोडक्ट। भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो इंजीनियर कहलाता है, इंजीनियरिंग कहलाती है। एंड दैट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं उसके ऊपर।
अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उसी तरह से जो एक लायर होता है वो भी अपनी सोसाइटी को बनाने के लिए कार्य करता है। उनके जो इंटरेस्ट है उसके अंदर बैलेंस बिठाने का कार्य करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने इंटरेस्ट को 3 भागों में डिवाइड करा, पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट की, तो प्राइवेट इंटरेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर पर्सनैलिटी, फ्रीडम ऑफ विल, फैमिली मैरिज, डोमेस्टिक इंटरेस्ट ऑफ द सब्सटेंस, प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे के सारे प्राइवेट इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। यदि हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, दैट डील्स विद प्रोटेक्शन एंड सोशल इंटरेस्ट and all the social interest comes under the category of general safety, social interest, economic institution। तो ये सारे के सारे आपको कहेंगे सोशल इंटरेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू पॉइंट, प्राइवेट इंटरेस्ट आर द क्लेम्स और डिमांड्स और डिजायर्स इन्वॉल्व इन और लुक्ड एट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। वहाँ पे इंडिविजुअल लाइफ के संबंध में जिन उनको इंटरेस्ट को देखा जाना चाहिए, जैसे पर्सनैलिटी, फिजिकल इंटीग्रिटी, ओनर, रेपुटेशन। इंडिविजुअल इंटरेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन सा हो सकता है, मैरिज या मैरिटल इंटरेस्ट, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप, पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप, ये सारे के सारे क्या है, प्राइवेट इंटरेस्ट है। यदि हम बात करते हैं सोशल इंटरेस्ट की, तो सोशल इंटरेस्ट के अंदर कौन से इंटरेस्ट आएंगे, अकॉर्डिंग टू पाउंड सोशल इंटरेस्ट आर द डिमांड्स, क्लेम्स एंड डिजायर्स थ्रू इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। एंड सोशल इंटरेस्ट की यदि हम बात करते हैं, दीज आर the social interest that emphasis on the interest in the preservation of the security of acquisitions and security of the general health। So that is deals with the domestic institutions, religious institutions, political institutions। तो ये वो इंटरेस्ट है जिनको सोशल इंटरेस्ट का नाम दिया गया है। If we talk about the Roscoe Pound, he has given certain jural postulates। रोस्को पाउंड जी ने कुछ ड्यूरल पोस्टुलेट्स भी दिए थे। इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू डू विद द प्रायोरिटी, पाउंड हैज सजेस्टेड द सर्टेन ड्यूरल पोस्टुलेट्स, हैज सजेस्टेड सर्टेन assumptions upon which ordering rests through for most of the time they may be implicit rather than expressly formulated। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, पाउंड हैज सजेस्टेड सर्टेन इवोल्यूशंस, सर्टेन assumptions। उन्होंने कुछ assumptions मानी थी और ये कहा जाता था कि इनको ड्यूरल पोस्टुलेट्स का नाम दिया गया था। तो पाउंड हैज मेंशन्ड 5 ड्यूरल पोस्टुलेट्स इन 1919। 1919 के अंदर पाउंड जी ने 5 ड्यूरल पोस्टुलेट्स दिए थे। देवर इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी, पहला ड्यूरल पोस्टुलेट क्या कहता था कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर मैन मस्ट बी एबल टू परज्यूम, मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट द अदर्स विल नॉट कमिट एन इंटरनल एग्रेशन अपॉन देम। भी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई किसी भी प्रकार का इंटेंशनल एग्रेशन नहीं करेगा। फर्स्ट ड्यूरल पोस्टुलेट दैट इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट अदर्स विल नॉट कमिट द इंटेंशनल एग्रेशन अपॉन देम। भी बिना मतलब के कोई किसी के ऊपर मतलब एग्रेशन नहीं करेगा। और सेकंड ड्यूरल पोस्टुलेट्स दैट इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट दे मस्ट कंट्रोल फॉर देयर इकोनॉमिक एंड फेवरेबल एम्स। तो किसी भी सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे क्या बोला है कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर कोई भी व्यक्ति ये अज्यूम करके चल सकता है कि वो अपने को कंट्रोल मतलब दे मे कंट्रोल फॉर बेनिफिशियल पर्पज, वो अपने बेनिफिशियल पर्पज के लिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वट दे हैव डिस्कवर्ड एंड अप्रोप्रिएटेड टू देयर ओन यूज। भी ऐसी चीज़ें, जो ऐसी वस्तुएं जो उन्होंने अपने पर्पज के लिए बनाई है, उनको कंट्रोल करने का उनका पूरा अधिकार होगा। जैसे आप IPR लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कॉपीराइट है, जो आपने अपने बेनिफिट के लिए जिसका क्रिएशन किया है, नेचुरली उनके ऊपर कंट्रोल करने का आपका पूरा अधिकार होगा। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड ड्यूरल पोस्टुलेट, यदि हम थर्ड ड्यूरल पोस्टुलेट की बात करते हैं तो ये कहता है कि इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट दोज विद whom they deal as a member of the society must act in good faith, will act in good faith। जिनके साथ भी वो डीलिंग करेंगे, कोई भी व्यक्ति जो किनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डीलिंग करेगा, तो ये समझा जाएगा कि वो गुड फेथ में एक्ट करेगा, एक सद्विश्वास में कार्य करेगा। इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ ड्यूरल पोस्टुलेट, यदि हम चौथे ड्यूरल पोस्टुलेट की बात करते हैं तो इट सेज दैट इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट दोज हु एंगेज इन सम
course of conduct will act with due care and not to cost of unreasonable or injury upon them। भी कोई भी व्यक्ति जो कार्य करेगा वो एक पूरे प्रॉपर केयर और कॉशन को करते हुए लेते हुए करेगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही वो नहीं बरतेगा। यदि वो ऐसा करता है नेचुरली तो वो लायबल होगा। एंड द लास्ट जुरल पोस्टुलेट, दैट द फिफ्थ जुरल पोस्टुलेट, as told by Professor Pound, is that in a civilized society, man must be able to assume that others who maintain the things or employ agencies harmless in their normal actions and having a natural tendency to cross the boundary of their proper use। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो लास्ट जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति ये अज्यूम करके चल सकता है कि they will maintain the agencies harmless in their normal actions, having a natural tendency to cross the boundary of their proper use। So these are the certain jural postulates that is defined by Professor Pound। ये कुछ jural postulates है जो प्रोफेसर पाउंड जी के द्वारा डिस्क्राइब किए गए थे। If we talk about the criticism, this theory was also criticized। ये जो पाउंड जी की थ्योरी है इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था। द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग हैज आल्सो बी क्रिटिसाइज्ड ऑन द वेरियस ग्राउंड्स सच एज नंबर 1, इंजीनियरिंग नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ जो इन्होंने इंजीनियरिंग वर्ड यूज किया है ये एक वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, सही वर्ड नहीं है। डिस्पाइट द पाउंड्स ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, his theory was also criticized and his theory suffers from certain drawbacks, as the Pound has used the word engineering that is not an appropriate word। This theory was criticized for the use of word engineering। जो उन्होंने वर्ड इंजीनियरिंग यूज करा है इसके संबंध में उन्होंने क्रिटिसाइज किया गया, उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। Here the word engineering suggests a mechanical application of the principle of social needs, and the law is a social progress rather than the result of social applied engineering। ये तो एक सोशल प्रोसेस का परिणाम है, ना कि एक अप्लाइड इंजीनियरिंग का परिणाम है। इक्वेटिंग सोसाइटी विद ए फैक्टर इज नॉट ए करेक्ट। यहाँ पे जो हम इसको फैक्टर को जो इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं इंजीनियर के साथ, ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो आप देखोगे तो ये एक डायनेमिक चेंजिंग है नेचर के अंदर, वाइल्ड लेटर इज मोर स्टैटिक। यहाँ पे आप कहते हो दिस थ्योरी सजेस्ट फ्रॉम सर्टेन ड्रॉबैक्स। कौन कौन से ड्रॉप बताए? तो वहाँ पे जो इन्होंने इंजीनियर वर्ड यूज किया है इसके संबंध में इसको क्रिटिसाइज किया गया है। लॉ इज ए सोशल प्रोसेस रादर देन द रिजल्ट ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग। लॉ एक सोशल प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं चेंजिंग नीड्स के साथ में चेंज होता रहता है। यदि हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है जिसको एक फिजिकल उसके टर्म्स में यूज किया जाता है। दैट इज ए फैक्टर लाइक मैकेनिकल, वहाँ पे वो मैकेनिक्स की तरह उसको यूज किया जाएगा, मैकेनिकल एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज किया जाएगा। If we talk about the Professor Pound, he has completely ignored the freedom of individual। भाई आप देखोगे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल जो है इसका भी बहुत बड़ा स्थान होता है, विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ए हैप्पी सोशल लाइफ। जब तक आपके पास फ्रीडम नहीं होगी नेचुरली आप हैप्पी सोशल लाइफ नहीं जी पाएंगे, उसको भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए थी जबकि उन्होंने नहीं दी। तो दैट वाज द मेन क्रिटिसिज्म दैट इज टोल्ड बाय प्रोफेसर पाउंड। If we talk about the next criticism, that is main criticized by Professor Allen. Professor Allen has also criticized the Professor Pound's theory of social engineering. If we are to think of want and desires as the essential subject matter of the law, we should give that the term the widest interpretation. So the wide that it becomes difficult to draw a line of demarcation between the scope of sociological jurisprudence and that of other kind of jurisprudence। तो प्रोफेसर पाउंड जी के हिसाब से जो वांट और डिजायर का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है इसके संबंध में यदि हम पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसको मतलब बहुत एक वाइड इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत पड़ जाएगी, और यहाँ पे ये इतनी वाइड होगी कि यहाँ पे इसके संबंध में एक लाइन मतलब ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिस मीन्स स्कोप जो सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है और या जो अदर टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है उसके बीच में हम लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इसी संबंध में इनको क्रिटिसाइज किया गया है प्रोफेसर पाउंड जी को। तो क्वेश्चन द यूटिलिटेरियन प्रोफेसर पाउंड एज इट कन्फाइंस द इंटरप्रिटेशन वांट्स एंड जैसे मैंने आपको बताया डिजायर के संबंध में इन्होंने जो बताया है इसको इंटरप्रेट करना आसान नहीं है।
जिसकी वजह से इसे क्रिटिसाइज किया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोफेसर पाउंड थ्योरी, एंड द प्रोफेसर पाउंड थ्योरी शिफ्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द लीगल ऑर्डर फ्रॉम द लेजिस्लेशन टू द कोर्ट ऑफ जजमेंट्स, बट जुडिशरी हैज इट्स लिमिटेशन. It does not having any machinery to enforce the decisions. Thus the effective social engineering is not possible. जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोफेसर पाउंड जी ने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी जो लीगल ऑर्डर के पास थी, वो अब लेजिस्लेशन को से मतलब लीगल ऑर्डर को शिफ्ट कर दिया है. तो इस तरह से आप देखेंगे तो प्रोफेसर पाउंड जी की जो थ्योरी है उसको उसके संबंध में कई क्रिटिसिज्म किए गए हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. If you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.